جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے. جی جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی جو علی بابھا کی منزل پر ہو. ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے، کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے؟ مشورہ تو دیا جاتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے. ہم تو اپنی ریکویسٹ یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے. سن لیا جی، روکو ذرا، سن لیا جی. جگڑ دلی دا بچہ ہے بھی. کوئی یہ بھائی جی ایس خبیث خندیر یہ بڑا ٹپ گیا جی، بہت اگے ٹر گیا ہے. ہاں جی بابا جی اگے میں نواں ویڈیو میں پوری ویکھی ہے، 1000 تو زیادہ یہ کفریات میں نوٹ کیتے جے. ایک ویڈیو دے وچ 1000 تو زیادہ کفریات. او میں کیا یار دی کیڑی کیڑی چیز دا سی رد کریے تے کتھوں کتھوں جا کے اس خبیث تے خندیر نو لتر پھیریے. تے انی دے بچے نے جڑے اکھاں بند کر کے انی دے بچے دے پیچھے لگے نے. ہاں جی انہوں والا لتراں دی لوڑ، لتر پھیرو انہوں سائڈ تے کرو. تسی انے واہ مردیو دے پیچھے لگے ہو. علی بھائی علی بھائی، شاید بھائی ہے ویسے تہاڈا ہی کیس جے. مینوں تے گالاں ہوندیاں کوئی نہیں، اللہ دی قسم ہے نہیں تے. ہاں جی صاحب یہ پپو ملک کتنے گیا؟ پپو ملک پہلے بیٹھا تھا بغیرت انسان. وہ مر گیا ہوا ہے وہ کہ زندہ ہے؟ وہ چھوکرے دے پیرا کار کوئی ہے زندہ؟ مفتی صاحب سارے سو گئے نے، سارے سو گئے نے. یار شاید بھائی انج کرو نا، تسی اے ساریاں چیزاں نوٹ کر کے رکھو تے جدوں کوئی مرزئی آ جائے نہ کدی بھول کے بھی تے اے پٹاری کھول دیا کرو. ان کا دے پتر دا جواب ہے کی اے خندیر ہے بکواس کر دے ہی پیا. یار انہیں تے حد کٹنی ہے کہ نوز باللہ نوز باللہ. یار شاہد بھائی ویکھو قرآن کی کہندا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اچھی آواز نہیں کرنی، اچھی آواز نہیں کرنی. اچھا شاہد بھائی تہانوں میں ایک ایسی گل دسن لگا واں، اے تے جدوں اسی ویڈیو دا رد کران گے تے ادوں پھر دساں گے نو خندیر دے بچے نو. تسی پوری جملہ احادیث کٹھیاں کر لو، لکھاں دی تعداد تے حدیثاں نے ساریاں کٹھیاں کر لو. میں نواں تقریباً 15 تو زیادہ تانوں سوال نہیں لبن گے جڑے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتے. مفتی صاحب آیا جی ایک سنو تو صحیح نا یار. میں وابی، میں ہوں مسلم علم کتابی انجینئر محمد علی مرزا زندہ آباد. او چپ کرو مفتی صاحب ایک سیکنڈ اوے گل سن، پہلے مرزے قادیانی تے لعنت پا نا ذرا پہلے. انجینئر تم سب کا باپ. او مرزے قادیانی تے لعنت پا. قادیانی خنزیر ہے. لعنت قیدیانیوں پر لعنت، ساتھ میں جو مرزا کو غلط مرزے نہیں قادیانیوں تے لعنت نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی تے لعنت پا. ہاں اس پر لعنت جس نے آپ کا بھی نام لیا، جس کتے کا بھی آپ نے نام لیا نا اس کتے پر لعنت. ہاں تے نال تیرے تے بھی لعنت تے مرزا جونیئر تے. اچھا گل سنو بک انجینئر محمد علی زندہ آباد زندہ آباد. مائک تے میوٹ کر. اچھا کر لے کر لے. اچھا اچھا بات کر رہا ہوں یار، یہ مائک تے میوٹ کرو شاہد مینوں یا میوڈیریٹر بناؤ میں آپ ہی کر لاں. اچھا چلو ہو گیا، ہو گیا. اچھا تے جملہ احادیث اکٹھی کر لے 16 15 یا 16 آپ کو سوال ملیں گے جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو کہ حضور یہ ایک سوال ہے. صحابہ کرام تو بولتے ہی نہیں تھے اللہ کے نبی کے آگے. وہ نہ کوئی دیہاتی کوئی ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس کو یہ آگے کریں اور کہیں کہ تو حضور سے سوال کر. اور یہ کیوں نہیں بول یار سنے تو چپ کر مردیا ہے انی دیا پترا. میں حدیث حضور دی گل کرنا پیا تو خسما تو. اچھا سنو یار، اچھا
تو یہ خنزیر کہہ رہا ہے میں ہوتا تو میں حضور کو مشورہ دیتا خنزیر دیا پترا اور لکھ دی لعنت ہے تیرتے ہوئے خندیرا تو دیندا مشورہ انجینئر نہیں کہے اور چپ کر باندرا جیا چپ نہیں کرنا تو ہے باندرا جیا ابھی آپ کو سناتے ہیں آپ کو پورا ٹائم دیں گے آپ کو پورا ٹائم دیں گے پرومس یار شاید بھائی یار ویلا میرا سوال کیا ہے مجھ سے دماغ ایویں کماندا ہی پیا تے اے مینوں چپ کرا لو دماغ گرم ہویا ہے میرا دی خندیر دی گل سن کے مرزا جونیئر جیل میں دی تے مینوں تھوڑی جی گل کر لین دیو بعد چوں آپ ہی یہ نبڑتے رہے اجے ٹھیک ہوگا نالے میرا کیس ہی نہیں ہے کیس ارسلان گجر تے شاہد دا ہی ہے میرا کیس نہیں ہے اچھا تو یعنی اللہ کہتا ہے کہ حضور کے آگے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی اور وہ خنزیر کہہ رہا ہے میں ہوتا میں حضور کو بھی مشورے دیتا ہے اور لکھ دی لعنت تیرے تے زمانے بھر دی لعنتاں کٹھیاں کر لو اور مرزا جونیئر جیل میں تیری جمن والی ماں تے لعنت ہوئے خنزیرا اور تیرے پیو دے لعنت ہوئے اور تیرے تے لعنت ہوئے تیری نسلاں دے لعنت مرزا جونیئر جیل میں اور خنزیرا اور میں کہتا ہوں ادارے کیوں خاموش ہیں اور 295 سی کیوں نہیں لگا رہے اس کے اوپر اور خنزیر نو کوئی جیلم کے چراہے میں اس کو جلا دو زندہ جلا دو پاکستانی ادارے اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے اتنی خباستیں اس نے انتہا کر دیا حضور کی گستاخیوں کے اوپر ہاں جی چلو یار میں مائک میوٹ کرنا تے آپ ہی نبڑو ہوں اچھا جی اب جو ہے نا پہلے اپنا نام بتا دو آپ کون ہو کون میں جی آپ اپنا نام بتا دیں عبداللہ نام ہے میرا عبداللہ صاحب یہ جو بھی میں آپ نے بولا کہ یہ کیا بات مرزا جیل میں نے کی ہے یہی سوال ہے نا آپ کا جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتا ہاں یہ بات کوئی کر سکتا ہے کوئی ایز اے مسلمان کوئی کسی کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعوذ باللہ مشورے دے گا نہیں کر تو نہیں سکتا لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ صحابہ سے مشورے نہیں لیتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے نہیں کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا تھا صحابہ سے مشورے یار او بھائی پہلے ویڈیو سن تو پھر اگوں تے نہ گل کر یار شاہد جی اینو بھی تھلے ذرا لاؤ اینو لاؤ ذرا شاید اینو پہلے تھلے لاؤ پھر اگلی گل میں بعد چ کرنا شاید انہیں بھی کرنی جائے گستاخی شاید میرے کو اتنا جگرا نہیں اللہ دی قسم میں نہ کتے دیاں بچیاں دیاں کوئی گلاں سن سکاں میرے کو تے اتنا جگرا نہیں ہے وہ دی ٹیون تو پتا چل گیا انہیں بھی کرنی سی گستاخی صرف مرزا جونیئر جیل میں بچان واسطے انہیں بھی کرنی سی گستاخی کی کریے اسی دسو انہاں خندیراں دا کی کیتا جائے چلو کرو گل مفتی صاحب ہن گل یہ تے گل جڑی ہے نا کوئی کسی گڈی دے بچے اے سن ہن اپنے پیو دیاں گلاں سن बेहुदा बात लिखी हुई है अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए कोई बॉडी गार्ड नहीं था मर्डर हो गया इसीलिए हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था अच्छा उत्ते पे कहना मर्डर हो गया कुत्ते दे बच्चे शहीद शहादत को मर्डर पे कहना लानती है बेगैरत इंसान है खोती मां दा बच्चा शाद भाई वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे पब्लिकली नहीं आते थे मैं तो कहता हूँ हजरत अली को अपने बॉडी गार्ड रखने चाहिए थे यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूँ तो उन्होंने तो अपना कमरा भी शायद एक मिनट ठहर जाएं शायद जी सुनना पे मैं चला वां ते अज ना हक दा करना जे ते मैं इसे पर्दा रह के देना वा तुसीं की करदे हो एदी ओ तंबी लानी है इस खंदीर दी रे रब दा अरसलान गुजर भी है जे ते आमिर भी बैठा है ते विनवा मैं तुसीं की करदे हो इस खंदीर नूं ओ लित्तर मारने ने कि तरीही लित्तर होने चाहिए ने चलो
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਤੀ ਜੇ ਕਿਦਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕਾਲ पे आओ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਪੀਰੋ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲ ਪਾ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ यही तो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आ जाओ कॉल पे आ जाओ अब्दुल्ला कॉल पे आओ अब्दुल्ला भाई काल डाल कॉल पे आओ यही तो हमारा मकसद है कि अंधी अकीदत जो है ना कुफर करती है तो उसको थोड़ा सा समझें सोचें अस्सलाम वालेकुम नहीं वालेकुम सलाम ऊपर आओ यार मैं नौज़ बिल्ला कभी भी तुझे गाली नहीं दूंगा आई प्रॉमिस कि गाली नहीं दूंगा ठीक है प्रॉमिस की गाली नहीं दूंगा आपने जब उसके ऊपर लानत डाल दी तो फिर आपके साथ तो हमारा मसला ही नहीं है कोई यू नो जो हक की बात करेगा वो माशाल्लाह अगर हक की बात सुनने के बाद भी अगर आप उसके ऊपर डटे हैं तो फिर गुनाह है ठीक है तो ये जो बातें बता रहे हैं लानत पाती शायद भाई अब्दुल्ला ऊपर आओ यार प्लीज ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬ్రో ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ जी ठीक है जी ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥੱਕ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ बुलाओ 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 इन्होंने लेकिन कोई गुस्ताख ना बुलाइयो ठीक है गुस्ताख ना कोई बुलाइयो ਸੈੱਟ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਓਏ ਪੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਪੀਰੋ ਉੱਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਪਰ आओ यार ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ और ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम भाईजान यार अब्दुल्ला ये जो आपने बातें सुनी ये नहीं क्या ये जो मर्डर हो गया ये हिसाब किताब ये गलत बात अब है। खुद अपने ईमान से बताओ कि ये गधे का बच्चा इसको मेंबर की सीट पे बैठना चाहिए अपने ईमान से बताना नहीं ये जो इस तरह अल्फाज यानी इसने यूज़ किए सही है आप यानी तहकीक करो लोगों को बताओ लेकिन ये जो अल्फाज है ये गलत है ठीक है अभी आपने कब नीचे लिखा मिर्जा जी ये वो है ठीक है इसलिए आपको इधर बुलाया था ताकि जो इसके अकायद हैं कि अंधी अकीदत जो है ना वो जहन्नम में लेके जाती है ठीक है ये जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत गलत है बहुत गलत सही बात है फिर यही चीज आप अब्दुल्ला भाई इसने बहुत ज्यादा कुफर किया हुआ है बहुत ज्यादा इसका कुफर है इसी और कॉन्टेंट्स तौबा में अमर एक सेकंड इसी कॉन्टेंट्स में थोड़ी सी आगे वीडियो चलते हैं तो आप और भी सुनिएगा और आपने फैसला करना है ठीक है आप खुद अपने ईमान को हाजिर नाजर जान के ये सोचिए और समझिए कि क्या ये अल्फाज इसके इस्लाम के मुताबिक हैं या ये गुनाह कर रहा है सुनिएगा जरा था जिसमें वो नमाज जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे जाहिर है कि वो एक थ्रेट तो थी हर तरफ से अंदर से भी बाहर से भी वहीं पे नमाज पढ़ते थे वो हजरत से जनाबे अमीरे माविया मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूँ कि उनको भी बॉडी गार्ड रखने चाहिए थे जी जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है मशवरा तो दिया जा सकता है बाकी उनकी मर्जी है हम तो अपनी रिक्वेस्ट यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे जी मैं तो कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते उम्मत खजरा का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ लिहाजा अगर अब पीरो जी अब्दुल्ला अब ये सुन लो कि इसने क्या अल्फाज यूज किए हैं कश्ती का बच्चा है मिर्जा अपना ये मरना है चोर किसी कदियानी का बच्चा वाली बात उसकी माँ को लन पैन लन गलाजत वाली बात ये की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मशवरे मिलते थे तो इसकी क्या ज़रूरत थी ये मिर्ज़ा की क्या औकात जो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दे हुजूर को फरिश्ते आके अल्लाह की तरफ से मशवरे देते थे ये उनको मशवरे देता अजीब यार अभी एक और वीडियो सुने मैं आपको पहले जब आए थे आप तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पे लानत डालें
ठीक है, क्योंकि वो जंदीक हैं, हरामी हैं वो। अब इसकी ये जरा वीडियो सुनिए। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? ये ले अब्दुल्ला साहब एक और नवी चवल। ये मर्ज़ियत नवाजी नहीं है तो और क्या है यार। सही बात है, सही बात है। ये मैं शुरू में इसको इसलिए सुनता था कि ये फिरका वारियत से बड़ा तरह की बातें करता था, लेकिन अभी ये हद से बढ़ गया है। तो यही तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा। बहुत बड़ा फितना है ये। कदियानियों का एजेंट है, ठीक है सर। कदियानियों से पैसे लेके इसने अपना ईमान जो था इसका इसने बेचा हुआ है, ठीक है। ये काम भी कदियानियों के लिए करता है। ऐसी जो बयान देता है ना, ये बंदा होते ही कदियानियों का पैरोकार है, ठीक है। ये लोगों के इसकी माँ को लान, इसकी नस्लों की भैंस और गश्ती का बच्चा है ये भैन लान, किसी खोती का बच्चा है। यार किंग साहब उसकी सुनने दें प्लीज। जी पी अब्दुल्ला बोले। ये अगर ये इस तरह बातें कर रहे हैं तो ये लोगों के दिल में कैदियानियों के लिए नरमी पैदा कर रहे हैं, जो हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब कॉल पे आ जाए। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। यार किधर जा रहे हो? बैठो अभी तो। काम है मुझे, काम है। हैं? मुफ्ती साहब को मेरा सलाम कहना। नहीं वो भी आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। देखो उम्मत मुस्लिम बाकी इस नहीं, तरफ it's okay. नहीं देनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, हुकूमत के हवाले करना चाहिए अपने आप से, यानी लोगों को वरगलाना नहीं चाहिए। ये मेरा बस मशवरा है। मुफ्ती साहब की ओए जाते जाते कलमा तो पढ़ जा, मुशरक ठीक हो हो गया है तू। मुफ्ती साहब उसने उस पे लानत डाल दिया तो 10 मोहर। और लानत तो पाजड़ी दो तो कलमा भी तो पढ़े ना जी। नहीं कोई नहीं, मैं चल यार तेरे अब्दुल्ला। वास्ते आया हूँ। नहीं ये तो देखो वो मिनी खुदा बना रहा है, शिरकिया कीदा। और जो भी मिर्जा जूनियर जेलमी को मानता है, रत्ती बराबर भी उसका दिफा करता है, वो मुशरक हो गया, काफर हो गया है। उसको तजदीद ईमान की जरूरत है, तजदीद निकाह की जरूरत है, एलानिया गुनाह की, एलानिया तौबा की जरूरत है। सारी दुनिया के सामने आके लानत डाले मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर और असर नो मुसलमान हो। ये एक और 88878 ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम मिर्जा जूनियर जेलमी को मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी से भी बहुत बड़ा खंजीर समझते हैं, और कादियानियों से भी बड़े गुस्ताख या मरदूद और जिंदीक हम मर्जियों को समझते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा प्लीज। 88878 साहब कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शायद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मेरे ख्याल से आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी मिर्जा जेल में। जी 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 रात बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं। तो आज जो मुफ्ती साहब ने कुछ ये भी इसकी लेटेस्ट वीडियो आई है वो आपको सुनाते हैं, फिर आप। नहीं मैं सुनी है, मैं थले बैठ के सुनी है। वो रहन दो जी, गुस्ताखी है ये, नहीं सुनने के काबिल। सुनी है मैं क्या 2-3 दफा थले बैठ के। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? और नहीं जी बहुत अपनी लिमिट तो बहुत आगे चला गया। एक घंटा नहीं है गल करनी, होती नहीं। देखा अल्हम्दुलिल्लाह शायद भाई देखो मैं फायदे हो रहे ने। दूजा बंदा जड़ा वे समझ लो कि मिर्जा जूनियर जेलमी दा टुट गया जे। तो सर मैं ओदा बंदा नहीं है, मैं किसी मौलवी का कोई बंदा नहीं है। मैं को नहीं मिर्दे शिर्दे की नाम कदे सुने ना। एकन ते ना तुसी एलिगेशन ला छड़े करो। ते मैं पर मुफ्ती साहब मैं गल ये करन आया सा भी तुहाडे पर भी एलिगेशन लाउंदे रहे भी तुसी मरज़ाइयां दे कहदे सुनतकार हो। मैं पिछे जे वीडियो देखियां तो हुण मैं आके पर तुहाडी सुनदा रहा थले बैठ के, ते माशाअल्लाह तुसी ते इन्हां दे खिलाफ गल्लां करदे हो। यार जिधर दिल नहीं देखिए कॉन्टेंट्स पे बात करें, ठीक है। जिसका जो दिल करता है नहीं मैं यो आखन लगे ना भी कर देन बंदे गल बस ठीक है। ते लेकिन जो गल हकीकत एक मिंबर ते बह के बंदा एहो जी चवल मारेगा ते फिर ओदी तो मंजी ठोकेगी ना। एटलीस्ट फ्रेंड ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦਫਾ ਕਰੋ उसकी बस हाँ ਹੁਣ ਤਾਂ डिफेंड कर ही नहीं। यही मैं बात करने वैसे वाली एक थी, गल ठीक है। ਕੀਤੀ है, मैं ये नहीं ਉਹਨਾਂ पर हाँ, ਅਟੈਕ ठीक है। ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ पर। नहीं वो ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਚੜੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ
लेकिन मैं डंके दी चोट ते कहना कि मरज़इयत नवाजी करते ने, ठीक है। लेकिन मुफ्ती एटलीस्ट मुफ्ती साहब दा मैं इन्ना कह सकना कि मुफ्ती साहब मिर्जे दे उत्ते लानतां मरज़इयां दे मूंह दे सामने पांदे ने, जी ठीक मुझे है। पता है ना, क्योंकि मुफ्ती साहब की मैं बड़ा पुराना यूट्यूब ते तकना वा जिले जर्मनी च एक बंदा होंदे ओदे नाल बहस करदे सन पे लाइव ते वो जेड़ा आदे मनु खुदा ना मैं अल कलाम होना जे अगर मैं गलत नहीं कह रहा था मुफ्ती साहब इंज ही है। सही है। अच्छा एक सेकंड थोड़ा जो मैं कॉन्टेंट्स तो ऐसे कॉन्टेंट्स थे ना मुफ्ती साहब मरज़इयां ते आ जाइए थोड़ा जा ते कादियानियां ते मिर्ज़ा मसूरे दी नवीं एक वीडियो आई है वो नमाज दे तरीके दसदा पिया ये भी जरा सुन लियो तुसी मैनूं दसना मुफ्ती साहब केड़ा कुरान पढ़दा मुफ्ती साहब आ सुनियो आज नवा ही पका सुनियो हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलात हैं ये कायम करते हैं नमाज सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून देन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून देन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम ए की पढ़दा पिया मुफ्ती साहब ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਐਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ ومما رزقناهم ينفقون then चंदा and ਕਹਿੰਦਾ ਦਨ ਚੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਯਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ ਯਬੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਯਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ अच्छा वीडियो यार शायद भाई चलावा वीडियो जी मुफ्ती साहब आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं अच्छा एक मिनट मैं ना जरा शायद साहब मादर साहब मुफ्ती साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰ ਜਾਪਾਲ ਚਲਿਆ ਤੇ ਮਾਦਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ चलें ठीक है नो प्रॉब्लम ओके सर थैंक यू सो मच शुक्रिया जी शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह अच्छा यार वीडियो मैं शुरू तो चलान लगा अच्छा एक सेकंड मुफ्ती साहब ए कौन है जी अली तार साहब अली तारड़ अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम तुसी मर्दगी नहीं होते नहीं अल्लाह माफ करे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हरफी बरेलवियां लबैक नाल तल्लक है ते माशाअल्लाह सारा दिन मैं सऊदी अरब गड्डी चलाना माशाअल्लाह सारा दिन अस यूट्यूब ते मुफ्ती साहब होरां दी वीडियो ला के सुनदे रहंदे जेहड़ी अपलोड करदे ने ते माशाअल्लाह बड़ा इन्हां तो असी सिखदे भी हां पै ते पहले तो सन पता ही कोई नहीं सी ना ते माशाअल्लाह जदों दी मुफ्ती साहब रे तकरीबन मैं दो तीन साल हो गए मुफ्ती साहब होरां दी मैं वीडियो सुनना पिया माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम है ते इन्हां तो सब बड़ा कुछ हासिल कीता है बड़ा कुछ सीखिया बहुत मेहरबानी अच्छा जी ताहिर टैंगो साहब ताहिर टाइगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम जी पहले अपनी डेफिनेशन ला छड़ो ताकि फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ जी ताहिर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहिर साहब आप नीचे बैठ के सुने क्योंकि आप दूसरी तरफ भी बिजी हैं तो जी मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब पता ही करना मेरे है ना मेरी वीडियो आडियो ज़्यादा आवाज़ क्लीयर है जिथे तुसी कहोगे उत्थे मैं स्टॉप कर दिया करांगा फिर तुसी अपना तबसरा जारी रखो ये तो बेहतर नहीं है नहीं मेरी आवाज़ इधरों सही क्लियर नहीं जाती थोड़ी जी होली आवाज़
ਹੋ ਲਈਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਚੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ रोक देंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये उर्दू में बात करते हैं अभी, चूंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ये भाई अभी एक वीडियो आई है, आज हम ये डिमांड करते हैं हार्ट टॉक विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये डॉक्टर तो उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है मिर्जा जूनियर जेलमी का। पूरी वीडियो जो है वो 1 घंटा 30 मिनट 31 सेकंड की है। तो अब हम ये वीडियो शुरू से चलाते हैं और थोड़ी थोड़ी रोक के उसका फिर जवाब देंगे। अभी ये हम टिक टॉक के ऊपर बैठे हैं और शाहिद भाई की बराड़ है और बराड़ ओपन है। कोई भी इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेलमी का स्टूडेंट, उसका साबी और उसका उम्मती या उसका शागिर्द जो भी है मुरीद, अगर कोई आना चाहे लाइव तो आ सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, और जो भी बात करेंगे दलाइल के ज़रिए करेंगे, हम भी दलाइल के ज़रिए और मरज़ई भी जो आएगा वो भी दलाइल के ज़रिए। तो अगर तो बक बक करनी है या गालियाँ गुलियाँ देनी है तो वो फिर अपनी जगह पे तुम देना, अपने घर में ही देना बैठ के। तो यहाँ पे लाइव पे तो सवाल जवाब होंगे भाई दलाइल के ज़रिए। चलें जी, शाहिद भाई शुरू करें भाई वीडियो। ठीक होगा, शुरू से। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं जी मुफ्ती साहब जी जी जाने दे। अभी ये चूंकि वो झलकियां हैं, अभी ये तकरीबन 19 पॉइंट की वो झलकियां हैं। आगे जाके वीडियो आएगी, आप अभी ये कंटिन्यू रखें। मुफ्ती साहब आप म्यूट लगा लेना, तो उसके बाद फिर मुझे पता चल जाएगा जब आप अनम्यूट करेंगे। जी जी मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। हम बहुत सारे उलमा दीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़ना ठीक से नहीं आता, वो अरबी में रान को पट कहते हैं, आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे, क़यामत के दिन अगर मोहम्मद चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा मुझ पे दुनिया में बहतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? हम तो पारों की तकसीम को ही नहीं मानते, ये तो बनु उमैया के दौर में हुई है और हकीकत बात है। कुरान में पारे तो है ही नहीं थे, तो बाद में 30 दिनों में कुरान मुकम्मल करने के लिए वो किसी ने ऐसे ऐसे करके ना वो गिन गिन के ना सफे 30 पारे बना दिए, 30 पारे बना दिए। आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते तो ये बनु उमैया के दौर में की, आपने हमेशा जोड़ने की बात, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी बात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, मर्डर हो गया। इसीलिए हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था, वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, पब्लिकली नहीं आते थे। मैं तो कहता हूं हजरत अली को अपने बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे, यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो अपना कमरा भी, सही मुस्लिम में वो एक कमरा था जिसमें वो नमाज, जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे। जाहिर है कि वो एक थ्रेट तो थी हर तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, वहीं पे नमाज पढ़ते थे वो। हजरत से जनाब अमीर मुआविया मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा, वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम
दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया। फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूँ कि उनको भी बॉडी गार्ड रखने चाहिए थे। जी जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो, एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है, कि वो अली को मशवरा दे रहा है। मशवरा तो दिया जाता है, बाकी उनकी मर्जी है, हम तो अपनी रिक्वेस्ट। यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते। उम्मत खजरा का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ है। लिहाजा अगर आज हम ये डिमांड करते हैं कि सऊदी हुकूमत को ये गुम्बद खजरा उतार लेना चाहिए और इसको अपनी उसी वापस हालत में लेके जाना चाहिए जो खलीफा राशिदीन के दौर में था कि हुजरे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर कब्र अतर थी, ऊपर से कोई नंगी नहीं हो जाएगी, वो छत थी। अभी आपका ये तकाजा है? जी जी, हमारा तो तकाजा है, हम तो सऊदी हुकूमत से गुम्बद खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया। आपके लाइव वीडियो सेशन में आपके बैकग्राउंड पर बाकायदा गुम्बद खजरा को देखा जाता है। जो गुम्बद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया, वही नाफरमानी वाली चीज आप अपने बैकग्राउंड में लगा रहे हैं। जब है ही नाफरमानी तो आप बैकग्राउंड पे क्यों लगा रहे हैं भाई? जब है ही नाफरमानी तो आप बैकग्राउंड पे क्यों लगा रहे हैं भाई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से जनाब फातिमा तो ज़हरा अबी हवा अलैहा सलाम के घर का दरवाज़ा गिराया गया। उनके शिकमे थर में जनाब मोहसिन भी शहीद हो गए। अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को। शिया का कोई कसूर नहीं, रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे, और रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे। आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की इसहाक बिन राहविया के हवाले से, क्या कि आपने ये तहरीफ की असली अबारत में जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा, मगर उस किताब में तो सहाबियत का जिक्र नहीं है ना। किसमें? अल-मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी। मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। इंडियन यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, जहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि भाई वो अल्लाह की नेमत हैं। मगर एक काफिर तो आपकी नज़र में अल्लाह की नेमत हो, मगर जो बुजुर्ग जिनको आप कब्र चाटू कहते हैं वो अल्लाह की नेमत नहीं है। कोई तो जिंदगी में अच्छा काम उनसे साबित होगा ना भाई। हमने मान लिया बुजुर्ग कब्र चाटू है, ये काफिर पत्थर चाटू है। ध्रुव राठी जिसको आप हाफिज अल्लाह भी बोलते हैं, ये कब्र चाटू नहीं पत्थर चाटू है। इस हवाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को? मैंने तो नहीं से देखा चाटते, वो सेकुलर टाइप। आपने कब्र चाटते हुए देखे आला हज़रत को? किसको? आला हज़रत को। वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले पे माने में, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे, इनके जनाजे पर तीर बरसाए। तीर बरसाने वाला कौन? बनु उमैया के लोग थे, वो नहीं चाहते थे। यहाँ आप स्पेसिफिक नाम लें, बनु उमैया के लोग, ये क्या? मरवान को गवर्नर मदीने का बनाने वाला कौन? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्टीमेटली ये सारे तीर बरसाने हम पर नहीं पड़ते, और तीर बरसाने वाले को रज़िल्ला कहा जाए, ये दोहरा मयार है। देखिए पहली बात है, आप जैसी सच्ची शख्सियत से ये तकादा नहीं किया जा सकता, ये तकादा नहीं किया जा सकता। जनाब हुजर इब्ने अदी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुआविया क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। तो अगर जनाब मेरे मुआविया जन्नती हैं तो जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई, जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई। गुस्सा इस्लाम में हराम है, मगर तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। यानी कभी किसी शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये नहीं कहा होगा कि मेरी जान आज मुझे तलाक, कभी ऐसा नहीं कहा, हमेशा गुस्से में दी जाती है तलाक। तो जबकि एक चीज इस्लाम में है ही हराम, तो उसमें हलाल अमर कैसे अंजाम पा सकता है? गुस्सा तो कोई हराम नहीं है जी इस्लाम में, हम तो नहीं मानते इस बात को। ये कहाँ लिखा हुआ? एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा नहीं, इस्लाम में गुस्सा तो कहीं हराम नहीं है। अल्लाह के लिए गुस्सा आ जाता है, नबी इस्लाम की तो तबीयत में गुस्सा था। तलाक अल्लाह के लिए दी जाती, तलाक अल्लाह के लिए दी जाती। अभी तो आपने हमारे उस्मान भाई को नहीं देखा, हाँ, वो किसी की फौतगी की खबर भी मुस्कुरा करता है। अहले तशय्युअ का कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबी नूर शरीफ को हुई, जबकि बरेलवी हैं अहले सुन्नत हैं, कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और बनाते हैं बाकायदा। तो जरा हक़ाइक़ बता दें, आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है, उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना, वो विलादत मुस्तफ़ा के ऊपर है। उसमें वाज़ेह लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। शिया की किताब, जी जी बिल्कुल, देख ले, ना निकले मुझे पकड़ ले, ना निकले मुझे पकड़ ले।
कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? उनके पास ना कोई इल्म गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ, ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के मुनाजरा। हमारी भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि जो आपने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला हुआ है, हमें भी आपकी सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। आपने अपने बाद कोई इंजीनियर तैयार किया है जो इस इल्मी किताबी मसरत पर बैठेगा? आपने अपने बाद कोई इंजीनियर तैयार किया है जो इस इल्मी किताबी मसरत पर बैठेगा? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस। पूरी की पूरी वीडियो चलेगी, नीचे तड़पने वालों इंशाल्लाह पूरी की पूरी वीडियो चलेगी। ओके, आपको पता चलेगा कि इनकी इसकी बगैरतियां क्या है। अब पार्टी शुरू होने लगी है जी, शुरू करें जी। मिर्ज़ा मोहम्मद अली का, जो कि डॉक्टर साहब करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। मैं तो बिहाइंड द सीन में अपने जो भी है वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो बनते जाएंगे और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। जिसने हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी अली गिल चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और ये पॉडकास्ट देखने का आपको बेहद मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी जितने भी आलम दीन हैं उनका, ये जितनी भी वीडियो चलेगी ये पूरी की पूरी वीडियो, नीचे तड़पने वालों आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, ये आप एक घंटा 30 मिनट की वीडियो है, तो जितना भी टाइम है हमारे पास वो सारी की सारी चलेंगी। जी सुनिए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व इब्राहिम वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम मुमालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और तजर्रुक के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारा काम है कि इल्म की शम्मा जला रहे हैं और इल्म का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी जो शख्सियत हमारे साथ बराजमान है, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक किसी भी दीने मदरसे से सनद याफ्ता नहीं है, पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तमाम फिरकों की रातों की नींद हराम कर दी है। कल तक जो फिरके 73 फिरकों वाली हदीस सुनाते थे, आज खुद को फिरका तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी वजह से उम्मत किरामाती बुजुर्गों और बाबों से महरूम हो गई है। पहले किरामाती बाबे हुआ करते थे जो मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, निगाह मारकर लोहे महफूज पढ़ लिया करते थे, सलाम फेरते थे तो दाएं बाएं मुक्तदी। शायद भाई रोकिएगा जी। अच्छा ये देखें जी, ये डॉक्टर नसीर जो कुछ बयान कर रहा है ये बिल्कुल झूठ और गलत है। कौन से फिरकों की नींदें हराम की हैं वो बता दें। वो दुकानें बंद हो गई, कौन सी दुकान बंद हुई है, कोई नींदें हराम हुई हैं, कोई कुछ हुआ है, कोई बताए भी तो सही ना। यही काम मिर्जा कादियानी करता था। मिर्जा कादियानी कहता था कि देखो जी मैंने तो ईसाइयत को ख़त्म ही कर दी है, उनका द डैमेज हैज़ बीन डन कर दी है। जबकि मिर्जा कादियानी के मरने के बाद ईसाइयत बढ़ी है। फिर मिर्जा कादियानी कहता देखो जी मैंने तो दुनिया के अंदर से जिहाद ख़त्म कर दिया, कत्लो गारतगिरी और जंग ख़त्म कर दी है। जबकि मिर्जा कादियानी के मरने के बाद दुनिया मैदान जंग बन गई। जंगे अजीम अव्वल और जंगे अजीम दोम मिर्जा कादियानी के मरने के बाद हुई हैं। यही काम मिर्जा कादियानी करता था, वही काम मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा है। और जबकि फिरके वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, फिरकों की दुकानें वैसे की वैसे ही चल रही हैं। कोई एक दरबार ऐसा नहीं है कि जो बंद हुआ हो। पहले से ज़्यादा दरबारों के ऊपर रश हो गए है। पहले से ज़्यादा दुनिया सूफिया कराम को पढ़ रही है, सूफिया कराम की तहकीकात कर रही है पहले से ज़्यादा। और पहले से ज़्यादा लोग करामात के ऊपर एतकाद रख रहे हैं। पहले से ज़्यादा लोगों के ईमान पुख्ता हुए हैं। जिन बुजुर्गान ने दीन का
मुसलमानों को पता ही नहीं था, वो पहले से ज्यादा उनका मुताला कर रहे हैं। शेख इब्नुल अरबी का कौम को पहले नहीं पता था, तो पहले से ज्यादा कौम को पता चला है, ठीक है। हजरत बायजीद बुस्तामी का कौम को पता नहीं था, वो पहले से ज्यादा लोगों ने उनका मुताला करना शुरू किया है और उनके ऊपर औलिया कराम के ऊपर और बाबे बुजुर्गों के ऊपर ईमान लेके आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर नसीर जो कुछ इसके बारे में कह रहे हैं बिल्कुल झूठ, चिट्टा कोरा झूठ, रत्ती बराबर भी उसके अंदर सदाकत नाम की कुछ चीज नहीं है। आगे बढ़े जी। हाफिज बन जाते थे, जाए नमाज उठाते थे तो नीचे से खजाना नमूदार होता था, पानी पर चहल कदमी क्या करते थे, दिलों का हाल भी जान लिया करते थे। अच्छा हवा में उड़कर नाम महरम मुरीदनी को बचाने रोके जी, रोके। अच्छा ये बयान इस तरीके से कर रहा है, यही बातें मिर्जा जूनियर जेलमी करता है कि तुम्हारे बाबे ऐसे किया करते थे। ये लफ्ज जो है ना किया करते थे, ये बताता है कि जमाना माजी के अंदर इस्तिमरारी तौर पे ये काम होता रहा। इस्तिमरारी कहते हैं कि जारी रहा, यानी जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं ना, वो सारे के सारे यही काम करते थे। अब जैसा कि सिर्फ एक बात को हम बयान करते हैं कि देखो जी, बुजुर्गान दीन ये करते थे कि वो फर्ज कर लेते हैं जी पानी के ऊपर चला करते थे। मतलब ये कि अगर 1,00,000 औलिया अल्लाह गुजरे हैं तो हर वली अल्लाह यही काम करता था, और ये बुहतान है और इल्जाम है, ये झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये लोग ये मिर्जा जूनियर जेलमी और उसके फॉलोवर इस तरीके से बयान करते हैं कि जैसे जितने भी औलिया अल्लाह थे ना, वो सारे ही यही काम करते रहे, उनको कोई और काम नहीं था। हाँ, किसी एक वली अल्लाह से कोई एक काम हुआ, उसका नाम लेना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि ये फिर नाम लो कि फलां वली अल्लाह से ये चीज सरदर्द हुई और फलां किताब के अंदर फलां सफ़े के ऊपर ये बात लिखी हुई है। तो ये इन कज़्ज़ाबों की, दज्जालों की एक अलामत ये है कि ये कौम को इस तरीके से बयान करते हैं कि जैसे सारे वली अल्लाह ऐसे उनसे करामात का ज़हूर होता रहा। सिर्फ औलिया अल्लाह से बदजन करने के लिए और औलिया अल्लाह से दूर करने के लिए ये लोग साजिश कर रहे। जी आगे बढ़े। गाइस मैं आगे वीडियो चलाने लगूं, प्लीज ऑल फ्रेंड्स डबल टैप द लाइव, प्लीज डबल टैप एंड शेयर द लाइव प्लीज। जाया करते थे, कभी जलाल में आते सूरज को नीचे बुलाकर बोटी भून कर भी खा लिया करते थे। कोई बगैर वुजू इनका नाम लेने की जरूरत करता तो रोके जी। अब ये जुमला देख लें, और सामने वो मिर्जा जूनियर जेल में बैठा है, मां मीटरां दी तरह बैठा हुआ है जी, और हल्की हल्की उसकी मुस्कुराहट है, शैतानी मुस्कुराहट है कि जो कुछ मैंने इनको मर्जियों को सिखाया है, देखो वो ही बोली बोल रहा है और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। हाँ जी, करते थे। अगर ये लफ्ज ऐसे हो ना, करता था, तो होगा एक बंदा था। करते थे मतलब सारे के सारे ही ऐसे थे। ये देख लें, ये कितने बड़े कज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम झूठे तरीन लोग हैं ये। आगे बढ़े। अच्छा प्लीज डबल टैप करते जाएं गाइस, प्लीज, आई हम्बल सी रिक्वेस्ट है। जी मुफ्ती साहब फौरन मर जाता, लेकिन जब से मौलवियों की नजर में ये इंजीनियर नामी फितना नमूदार हुआ है, उम्मते मुस्लिमा की नींदें हराम हो चुकी हैं। जाहिर है कि जो इनको इस वक्त फितना समझ रहे हैं, रोक दे। अच्छा, ये जो टर्म है ना मौलवी और मौलवियों, ये टर्म खालस तौर पे निकाली है कादियानियों ने। मुसलमानों, ये टर्म कादियानियों की निकाली हुई है।
یہ لفظ آپ کو پہلی دفعہ ملا تھا مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر. مرزا قادیانی سے پہلے محررین کو مصنفین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. یہ مولوی اور مولویت کا لفظ سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر. جاؤ یہ ایک تاریخ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج کے طور پہ یہ میں بات رکھ رہا ہوں, میری بات کو غلط ثابت کر کے کوئی دکھا دے اور چیلنج قبول کرے. مولویوں کے بارے میں زہر اگلا تھا سب سے پہلے مرزا قادیانی نے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مولوی جو تھے یہ رکاوٹ تھے مرزا قادیانی کی شیطانی تبلیغ کے راستے میں. تو مرزا قادیانی کو یہ شیطنت کاری سوجی. اس نے کہا کہ ان مولویوں کے بارے میں نا قوم کو اتنا مطلب ڈرا دو اور اتنا مطلب زہر اگلو ان کے متعلق کہ لوگ مولویوں کی بات ہی نہ سنیں, مولویوں کے قریب ہی نہ جائیں. تو پھر مرزا قادیانی نے وہ بڑی بڑی روایتیں گھر میں بیٹھ کے گھڑیں. لو جی وہ روایت کے اندر آیا ہے کہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں, بندر ہیں, سور ہیں, خنزیر ہیں یہ مولوی. اور یہ اس قسم کی ضعیف اور موضوع قسم کی روایتیں گھر میں بیٹھ کے بنا کے اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی. سیم یہی کام مرزا جونیئر جیلمی نے کیا, کیونکہ یہ علماء کرام اور یہ مولوی جن کو یہ مولوی کہتے ہیں علماء کرام ہیں اصل میں, تو وہ علماء ہی رکاوٹ تھے. تو جب علماء کرام نے مرزا جونیئر جیلمی کی پکڑ کی تو مرزا جونیئر جیلمی نے مولوی 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 یہ مولوی یہ مولوی یہ کی رٹ لگا دی. اور وہی کام پھر مرزائیوں نے آگے پکڑ لیا, مولوی 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 مولویوں نے یہ مولویوں نے یہ. تو اس مولوی اور مولویت کے پیچھے اور یہ جو ایک نعرہ تھا اس کی پوری میں نے تاریخ اور اس کا سیاق یہ ڈاکٹر نصیر بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور مولویوں نے یہ کیا تو مولویوں نے یہ کر دیا تو مولوی ڈر گئے تو مولویوں کی دکانیں بند کر دی. کس نے کی؟ مرزا جونیئر جیلمی نے. اور مرزا جونیئر جیلمی خاموشی سے سن رہا ہے اور اس کا خاموشی سے سننا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کی ہر بات کی تائید کرتا ہے اور آخر کے اندر وہ تائید کرے گا کہ جو کچھ تم نے کہا بالکل سچ کا ہے. سنیں جی آگے جی. تصور کر رہے ہیں جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے بابوں بزرگوں کے ایسے قصے سن کر بے ساختہ ہنسی نکل آتی ہے اور بابوں پر میمز بننا شروع ہو چکے ہیں. اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے آمین. جس نے سارے فرقوں کی مٹی پلید کر دی اور صدیوں سے کھڑے فرقوں کی نیندیں حرام کر دی بلکہ جنازہ تک نکال دیا. جی ہاں ہماری پوڈ کاسٹ میں بس یہ دیکھ لیا سارے فرقوں کا جنازہ نکل گیا. مطلب کیا کہ سارے فرقے ختم ہو گئے ہیں. مسلمانوں زیادہ دور کیا جانا ہے. اگر سارے فرقے ختم ہو گئے ہوتے تو میں موجود ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میرا تو جنازہ نکل, میرا تو کوئی قبر بنی ہونی چاہیے تھی. یہ جتنے مسلمان یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے سارے کوئی نہ کوئی اس کا فرقہ ضرور ہے. ہاں جی, اگرچہ وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے کہ میں ان فرقوں کو فرقہ نہیں سمجھتا علمی طور پہ, جن کو یہ مرزا جونیئر جیلمی فرقہ کہتا ہے یا مرزا سینئر غلام قادیانی فرقہ کہتا تھا. یہ وہابی سنی شیعہ دیوبندی میرے نزدیک یہ فرقہ نہیں ہے, یہ مکاتب فکر. تو فرقوں کی دکانیں اگر بند ہو گئی ہیں یا ان کے جنازے نکل گئے ہیں تو بھائی یہ سارے ختم ہو جانے چاہیے تھے. یہ اکیلا پورے پاکستان یا پوری دنیا کے اندر ایک مرزا جونیئر جیلمی اکیلا ہونا چاہیے تھا, بقایا تو سب ختم ہو جاتے. یہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں وہ سب ختم ہو جاتے. یہ مساجد ہیں یہ سب ختم ہو جاتی. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو لوگ بول رہے ہیں. آگے بڑھیں جی.
में आज के मेहमान इंतहाई इल्मी किताबी शख्सियत के हामिल हैं। इनका रस्मी तौर पर तारुफ मैं कराऊंगा तो इसी तरीके से कराऊंगा। सदियों से खड़े फिरकों की करते हैं जिस एक शख्स ने नींदे हराम और जिनके नाम से तमाम मौलवियों पर तारी हो जाता है लिर्जा। तशरीफ फरमा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुके ये लें जी, जिनके नाम से तमाम मौलवियों पे लर्जा तारी। लो जी, हम पे लर्जा तारी हो गया जी। एक इमरान का नाम है कोई है, मैं कमदा जे पे इस टाइम लर्जे तारी हो गए जे भाई। हेलो जी, लर्जे तारी हो गए सारे मौलवी जी। ये लख दी लानत है, कुंडी मार के तू बैठे हैं। वो सारे मुफ्ती तेरे उधर अकेडमी में जाते हैं, तू कुंडी मार के बैठ जाता है। लर्जे तेरे ऊपर तारी हैं, किन मौलवियों पे तारी हैं? मुफ्ती हनीफ कुरैशी उधर गया, उधर जनाब मुफ्ती अली नवाज, मुफ्ती राशिद रिजवी, वो तो बल्कि हर हफ्ते जाते हैं उधर बयान करने तेरे अकेडमी के पास। हाँ जी, और मैं बजाते खुद मैं गया हूँ और दीगर बड़े मुफ्तियान कराम मौलवी जाते हैं। ये कुंडी मार के बैठ जाता है, ये तो बाहर ही नहीं निकलता। तो लड़ते हमारे ऊपर तारी हैं जी। हेलो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डंटे। वो कितने बड़े। और यार डॉक्टर नसीर तेनू डॉक्टर बनाया किन्ने में? पहले मैनू ते जवाब दे ना। नाले केड़ी डॉक्टरी तू? टीके लाने वाला डॉक्टर है या PhD वाला डॉक्टर है? केड़ा डॉक्टर है तू? कि एवें ही बस जिवें मिर्जा जूनियर जेल में इंजीनियर बने है प्लंबर का कोर्स करके, ते तू भी कोई DHMS करके ते ओ कंपाउंडरी का कोर्स करके डिप्लोमा 3 महीने का ते डॉक्टर बन गए जिवें डॉक्टर इसरार बनया सी। ते उंज दा डॉक्टर है तू? किंज दा डॉक्टर है तू? होए कितने झूठे हो तुम लोग। अब देखें जी, मिर्जा जूनियर जेल में अब जवाब देने लगा है। और यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, ये सलाम लेगा और ये जो सलाम का जवाब है ना, ये जवाब सुनिएगा और उस जवाब के बाद शायद भाई वीडियो आपने रोक देनी। चलें जी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपको वंस अगेन हमारी अकेडमी में। रोक दे। और ये जो आपने कलिमात अदा रोक दें जी, रोक दें। अब देख लें जी, ये कौन सी कुरान या हदीस के अंदर ये वालेकुम सलाम लिखा हुआ है? ये कोई एक मर्ज़ई साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम देंगे हम। ओए बिदतियो, ओए बिदतियो, वालेकुम सलाम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद। ये वालेकुम सलाम कौन सी है? ओए कहाँ पे लिखी है बताओ? ओए मर्ज़इयो, ओए बिदतियो, ये बिदत का आगाज किया मिर्जा जूनियर जेलमी ने। ये रिवर्स करें जी थोड़ी सी, जहां पे ये सलाम लेता है और ये जवाब देता है। दोबारा सुनाएं कौम को। फिरकों की नींद हराम कर दी बल्कि जनाजा तक निकाल दिया। जी हाँ, हमारी पॉडकास्ट में आज के मेहमान इंतहाई इल्मी किताबी शख्सियत के हामिल हैं। इनका रस्मी तौर पर तारुफ मैं कराऊंगा तो इसी तरीके से कराऊंगा। सदियों से खड़े फिरकों की करते हैं जिस एक शख्स ने नींदे हराम और जिनके नाम से तमाम मौलवियों पर तारी हो जाता है लिर्जा। तशरीफ फरमा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपको वंस अगेन हमारी अकेडमी में। रोक दे। देख लिया आपने, वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। हालांकि होना तो ये चाहिए था, ये सलाम भी इन मर्जियों को, ये मिर्जा जूनियर जेल में डॉक्टर नसीर को कहता कि भाई सलाम भी एक नया निकालो। सलाम का तरीका ये है, अस्सलामु अलैकुम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद। तो फिर मिर्जा जूनियर जेल में कहता वालेकुम अस्सलाम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद। ये कहना चाहिए था। और लख दी लानत बिदतियो, ओए बिदतियो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी दुनिया की किसी एक किताब के अंदर से ये सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम का तरीका निकाल के दिखा दो, मुंह मांगा इनाम ले लो।
ओए बिदतियो, चलो जी आगे जी बढ़े जी। में और ये जो आपने कलिमात अदा किए, इस तरह की तारीफ तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुजूर भी कोई काबिल गिरफ्त नहीं होगी। इस तारीफ के अंदर सच्चाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो सच्चाई है जो हमारे मुखालफीन भी मानते हैं जी हाँ, जी कि जी जब से इंजीनियर साहब आए बुजुर्गों ने उड़ना छोड़ दिया। जी हाँ। रोक दे जी, रोक दे। देख लिया, झूठ बोल दिया ना उसने, उसकी सारी बातों की तस्दीक कर दी कि बिल्कुल तूने सच्ची बातें की हैं, और आगे से ये कह रहा है मुखालिफिन भी इस चीज को मान रहे हैं कि बाकी तुमने फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं और तेरी वजह से तो मौलवी लड़ रहे हैं। मैं मुखालिफ हूँ जी मिर्जा जूनियर जेलमी का, मैं आपके सामने हूँ, मैं तो रद्द करता हूँ इन चीजों का। देख लें ये कज़्ज़ाब, झूठे तरीन, अल्लाह की कसम। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि कोई चैलेंज हमारे को कबूल करे, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो मर्ज़ई कमेंट करके बता दे जी मैं चैलेंज को कबूल करता हूँ, उसको कॉल पे उठा लिया जाएगा। हाँ पप्पू मलक ने काल पाई दी है, लेकिन इन्हों नहीं लेना क्योंकि ये चवल जी इंसान है। नहीं नहीं, वो नीचे कमेंट करे ना जी मुझे चैलेंज कबूल है, या मैं इसका जवाब देता हूँ इस चीज का। हम सवालात कर रहे हैं, इतने सवालात हो गए हैं, इन सब सवालों के जवाब भी हमें चाहिए। हाँ चलें जी आगे बढ़े जी। अरे पप्पू मलक चल दफा जा, पप्पू मलक नु काल ते ना लइए कोई भी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ख्याल है इस सच्चाई के ऊपर इजमाए उम्मत हो चुका है अल्लाह के फजल से। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? बहुत शुक्रिया कीमती वक्त अता बस ये फरमाया एक और मिनट, मैं फिर बस जी आपका बस रोकें अकादमी जी, में। रोकें जी रोकें। अच्छा इजमाए उम्मत की इस्तिलाह याद रख लें, ये आपको बड़ी जगह काम आएगी। मिर्जा जूनियर जेल में ये कोई कह रहा मुझे कबूल है नीचे। अच्छा ये एक बात कर लो तो बाद में इसको कॉल पे ले लेना। ये याद रख लें जी, इजमा हो चुका है उम्मत का। इजमा कहते हैं झूठ को। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने खुद ये तारीफ कर दी है कि मतलब झूठी चीज का नाम इसने रख दिया इजमाए उम्मत। हालांकि कौन सा इजमा हुआ है जी? कोई एक आलमे दीन जिसको ये मौलवी कहते हैं, जो इस मिर्जा जूनियर जेलमी पर ईमान रखता हो, इसकी तस्दीक करता हो, इसकी वाह वाह करता हो, कहता हो कि बिल्कुल ठीक मिर्जा जूनियर जेलमी तू जो कर रहा है ठीक। कोई एक एनीवन पूरी वर्ल्ड और टाइम क़यामत तक के पूरी दुनिया में से कोई एक आलमे दीन होना चाहिए, कोई ले के आ जाओ जो तेरी बातों को तस्दीक करता हो कि इसका नाम इसने रख दिया जी इजमाए उम्मत हो गया जी। मतलब क्या है कि सारे दुनिया के उलमा तेरा रद्द कर रहे हैं और तुझे खंजीर से भी बदतर समझ रहे हैं, तो उसका नाम इसने रख दिया जी इजमाए उम्मत हो चुका है जी। हेलो जी फड़ लो जी, इजमाए उम्मत लग गया जी पता होना इजमाए उम्मत किनू कहते हैं। ए जी इजमाए उम्मत, ये बात बात पे कहते हैं इजमाए उम्मत हो गया, फलां चीज पे इजमाए उम्मत हो गया, फलां चीज पे इजमाए उम्मत हो गया। मिर्जा सीनियर कादियानी भी इस इस्तिलाह को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था। वो कहता था, आज भी कादियानी कहते हैं कि लो जी इजमाए उम्मत हो चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। किसी भी दुनिया के किसी कादियानी से बात करके देख लें, वो आपको ये बताएगा कि इसके ऊपर इजमाए उम्मत हो गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये टोटल अपनी तलीमात मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी से ली हैं। टोटल तलीमात, तरीका वारदात, तलीमात, तरीका कार्रवाई जो है, और इस्लाम शिकनी के जितने भी मामलात हैं इसने मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी से लिए। हाँ जी शाहिद भाई आगे बढ़े जी, अगर कॉलर लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा जो कहता है ना कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ वो कॉल पे आ जाए प्लीज, ठीक है? कॉल डालें फिर मैं उठा लेता हूँ। ओके जी आगे चलते हैं वीडियो। दावत जी, अल्लाह आपको सलामत रखो, इसी तरह आप दिन का काम करते रहिए। इंजीनियर साहब, अली भाई, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ। बाबू को मानने वाले इंतहाई मुस्तरद आलिम थे। रोके जी रोके। हमने कहा था कि हम इसकी एक एक चीज का पकड़ करेंगे, एक एक चीज का मुआकबा करेंगे। ये कह रहा है डॉक्टर नसीर, उसको कह रहा है आप इसी तरीके से दीन की खिदमत जारी रखें, और वो आगे से कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन।
یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ ڈاکٹر نصیر بتائے یا اور کوئی مرزئی ہے تو وہ بتا دے، کون سی دین کی خدمت کون سی ہے؟ یہی سوال ہم قادیانیوں سے آج تک کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ملا، اور مرزئیوں سے بھی ہمارا یہ